In continuation with the yesterday's class, we had gone through certain types of codes. We'll continue that. Just verify this for me. This is decimal 7. Its binary representation is 0, 1, 1, 1. Right or wrong? Right or wrong? देखो जरा. And this happens to the equivalent gray code of this. Is this right or wrong? मतलब 7 का ग्रे कोड है 0 1 0 0. 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 1 1. राइट और रॉन्ग? सही है? यह है ग्रे कोड? यस सर. ठीक. Well, Mr. there is a method now. If I want to convert my binary number, which is suppose 0 1 1 1 1, into Eisenberg, please. This is an important point. If you are asked to design a circuit, question है, question लिखिए. Design a circuit that converts binary number to its equivalent gray code. Design a circuit that converts the binary number into its equivalent gray code. प्रोसीजर देखिए क्या है. ये समझिए आपकी B0 है, ये आपका B1 है, ये B2 है, ये B3 है. Isotope please. ये आपका B0 है, B1, B2, B3. What does this mean? मतलब big number 0, 1, 2, 3. आप बताइए, which is the most significant bit among all these? Huh? B3 exactly. This is the least significant bit. B0. We are all on the same page for this, right? We know this all. So what is the procedure is? Procedure is simple. In order to find the equivalent gray code, what we do is starting from this side, we XOR these two bits and we find the first bit of the gray code. 1 और 1 का XOR करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 1 का XOR करेंगे तो क्या आएगा? 1 and 1 out this. 1 and 1 output is 1. 1 and 0 output is 0. Likewise 1 XOR 1 output is 0. Because मैंने आपको कहा था XOR गेट में जब odd number of 1s होंगे तब output 1 होगा, जब even number of 1s होंगे तब output 0 होगा. So anyways 1 XOR 1 is 0. This is यहाँ से आपको क्या निकला? G0. अब G1 ढूंढने के लिए B2 और B1 को आप XOR करेंगे, आपको वहां से G1 निकलेगा. B2 भी 1 है, B1 भी 1 है, तो 1 XOR 1 that again is 0. तो आपको G1 मिल गया. अब आपको G3 ढूंढना है, तो इसी तरह B3 और B2 का XOR करेंगे. आप वो XOR करेंगे, B3 0 है, B2 1 है, 0 और 1 का XOR 1 होता है. And in order to find the MSB bit, आप इस वाली MSB bit को डायरेक्टली यहाँ ले लेंगे. So MSB में, so the procedure is, now if you want to design the circuit for this is, suppose this is your binary number which is 0 1 1 1. This is your bit B3 वाली bit and this is your B01. So in order to design the circuit for this, you will say B3 directly becomes the G3 of the code. Okay? Now B2 निकालने के लिए इसको लेंगे हम और इस वाली बिट को लेंगे, उसको XOR गेट में डालेंगे, so you will get G2. Likewise इस वाली बिट को हम लेंगे और इस वाली बिट को लेंगे, उसको XOR गेट में डालेंगे and you will find G1. थोड़ा समझ ना मंगोल में है हार्ड है तो याद है. हाँ, ये क्या बनाया? ये पूछ रहा हूँ. ये है XOR गेट, तो ये निकलने आ रहा है. This is a small circuit that converts your binary code to gray code. ठीक है? वह अगर 10 बिट के आसन तो क्यों आराम से अगर 7 बिट के आसन
याद कैश काउंट प्रोसीजर क्या है? MSB bit remains the same and all other bits are calculated from the respective bits. MSB bit सीधा यहाँ पे आएगी, बाकी बिट्स प्रीवियस दो बिट्स मैंने ठीक किया कि गलत, कुछ गलती तो नहीं है? B3 और B2 का XOR ठीक है, B2 और B1 का XOR and D1 और B0. This is correct, yeah. So this is your B0, this is your B1 and this is your B2. Done, that's it. Let's move to the next code. ये एक point पे जो रह गया था and it doesn't cover. Right. So this circuit can be called as binary to gray code converter circuit. सही है? ये कौन सा गेट है? आपका नाम क्या है? मुनीर। ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट? सवाल सुनो भाई, जरा ये थोड़ा ऊपर ले जाओ। हाँ, जिससे पूछने का मतलब साहब, ये कौन सा गेट है? XOR, XOR, एक्सक्लूसिव OR इसका नाम है। ये असली OR गेट है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव OR गेट है। Is that clear? समझता? Applicably next heading. Is it done? No, sir. Should have been done. But anyways, I'll leave the circuit part, but let's see it is. Next up here. Equation code by Bena Chul. ASCII correct code. इसका फुल फॉर्म लिखिए जरा। American Standard Code, ASCII का full form American Standard Code for Information Interchange। ASCII कोड कहाँ पे यूज होता है? जनरली हम जो देखेंगे हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में, like for example you want to represent letter A, so letter A जब आप अपने कीबोर्ड पे दबाते हैं वो उसको एक ASCII कोड में कन्वर्ट करता है। वो ASCII कोड कंप्यूटर समझता है, अच्छा अगर ये ASCII कोड जनरेट हो रहा है तो it means he has pressed letter A। An alphanumeric character set includes an alphanumeric character set includes the 10 decimal digits, I repeat, an alphanumeric character set includes the 10 decimal digits. कौन से? 0 to 9, not 1 to 10, comma 26 letters of alphabet, yeah, 26 alphabet letters, (32) special characters, (32) special characters,
34 control characters. Sure. 16 into 8 कितना हुआ? 128. So there are total of actually 127. You write and many other characters, approximately, and many other characters, and many other characters. Okay. For example, letter A is represented as 100. Like that. देखिए अब ये यहाँ पे एक लेटर सपोज इमेजिन कीजिए आप बेसिकली जब भी कंप्यूटर में हमें I would say now if you want to go through a broader terminology ठीक है जैसे इन दो कंटिन्यूअस बातें आपकी बात कर रहा हूँ जो क्या किया जो मिस किया आपने ये तो फिर महंगा पड़ेगा ना आपको एग्जाम में एनीवेज तो थोड़ा समझ अच्छा इधर कुछ 2 मिनट के लिए कैरेक्टर suppose you want to represent a dollar sign. So the code for the dollar sign would be 0010. ठीक you want to represent some say person sign. जी 101. ठीक these are some examples. कुल मिला के मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ that coding is just the manipulation of these numbers. ठीक आपने एक 7-bit कोड ऐसा कितने बिट्स है इसके 7 बिट्स आपने 7-bit कोड असाइन किया ठीक स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर ए आपने ये वाला बिट 1 कर दिया बाकी 4 बिट्स जो है इसके वो 0 रखे and this code is as it is 100. यहाँ पे ये वाले 4 बिट में this was 1, this is how much 2, this is how much 3, so 0 I mean 1 2 3 ऐसे से करके A B C D E F ये वाला मे बी उसका काफी हद तक किसी बहुत पोर्शन के लिए सेम रहेगा जब तक हमें चेंज करने की जरूरत पड़े Bunching की मतलब any code is nothing but the manipulation of these numbers and how you arrange them. मतलब a particular arrangement is A, yeah represents A. अच्छा ऐसे कोड का इंशाल्लाह ज़्यादा यूज़ कर सकते especially when you have your just the best example is your keyboard. आप अपने कीबोर्ड जो है ना कुछ ऐसे बोलते हैं ASCII कीबोर्ड तो वो क्या करता है वो ASCII कोड जनरेट करता है जब भी आप कुछ प्रेस करते हैं उस पे तो वो एक ASCII कोड जनरेट करता है वो ASCII कोड किसको जाता है आपके कंप्यूटर्स को एंड इट understands the binary pattern behind it. Get the point?
सो क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर को क्या चाहिए, एक बाइनरी पैटर्न। लेकिन सॉरी टच में इससे पहले कि मैं कोई भी कोड यूज करूं, मेरे कंप्यूटर या मेरे प्रोग्राम में ऑलरेडी ये फिट इन होना चाहिए कि जब भी ए आएगा आपको ये बाइनरी पैटर्न जनरेट करना है। जब डॉलर साइन में प्रेस करूंगा आपको ये बाइनरी पैटर्न, एंड इट विल बी यूनिक फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। ठीक है, मुझे सोचते आप फोटोग्राफ बच चला, लेकिन उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये कैसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग ये तो थी एरर डिटेक्टिंग कोड्स। एरर डिटेक्टिंग कोड्स, okay, to detect errors in data communication and processing, to detect errors in data communication and processing वो बच्चे वो पीछे वाले आज बता रहे आप कुछ काम कर रहे हो क्या, आप क्लास ही ले रहे हो कि कुछ और कर रहे हो? To detect errors in data communication and processing, comma, an eighth bit can be added, for example, to ASCII character can be added, for example, to an ASCII character, for example, to an ASCII character code to indicate its parity, to indicate its parity, P-A-R-I-T-Y, to indicate its parity. Full stop. A parity bit is an extra bit that make the total number of ones and parity bit is an extra bit that make the total number of ones in the code that make the total number of ones that make the total number of ones either that make the total number of ones either even or odd, that make the total number of ones either even or odd. ठीक है, लेकिन किसके वंस बनाते हैं इवन और ऑड? जो आपके पास ऑलरेडी कोड होता है। ठीक है जी, आप देखिए जो आपने लिखा आइज ऑन बोर्ड, क्या जी जी but I can't understand. Okay, listen, then ask again. सुनो, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब जो आपने लिखा वो मैं समझा रहा हूँ, समझो। ओके, आइज ऑन बोर्ड, कैसे हो? जैसे मैं कौन सा बोर्ड में चले ही नहीं। ओके, ये आपका एसक्यूएल कोड था। मुनीब, ये कितने बिट का है? कहाँ गए थे यार? तुझे कितने सुना है जो बोर्ड से अच्छी हो गई? कितने बिट का है? 7 बिट का। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप यहाँ पे एक और बिट लगाएंगे, एडिशनल बिट लगाएंगे हम। सपोज आपने ये लेटर ए भेज दिया एक पैरिटी एडिंग सर्किट में,
उस पैरिटी एडिंग सर्किट ने क्या किया, एक पैरिटी बिट ऐड कर दी, ठीक। या अब हम कहेंगे इसके भी अब दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो इवन पैरिटी एडिंग सर्किट या ऑड पैरिटी एडिंग सर्किट। मतलब इवन पैरिटी आपको पता क्या होता है? इवन पैरिटी होता है जब नंबर ऑफ वंस इन अ गिवन कोड इज इवन, इट मींस इट इज इवन, द पैरिटी इज इवन। मतलब इस कोड में करंटली इवन पैरिटी है, ऑड पैरिटी है। इस कोड में करंटली इवन पैरिटी है, ऑड इवन, मतलब दैट मींस नंबर ऑफ वंस इज इवन। नाउ सपोज we are designing a system that follows even parity system। एक हमने प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया या कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जो फॉलो करता है क्या, इवन पैरिटी सिस्टम। व्हाट डज दिस मीन? इट मींस दैट ये जो भी नंबर ट्रांसमिट करेगा टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, इट एंश्योर्स दैट द पैरिटी इज ऑलवेज इवन। आई रिपीट, ये सिस्टम क्या करता है, सपोज ये एक ट्रांसमीटर साइड है और ये दूसरा कोई रिसीवर साइड है। ये इवन पैरिटी सिस्टम अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो दिस पैरिटी एडिंग सर्किट और द सिस्टम ऑलवेज एंश्योर्स जब मैं नंबर यहां से यहां की तरफ भेजूंगा तो वो हमेशा इवन होना चाहिए। अब अगर नंबर हमेशा इवन होना चाहिए तो इसमें, और सॉरी नंबर ऑफ वंस हमेशा इवन होना चाहिए, इसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस जो है इवन है, तो जो पैरिटी बिट ये ऐड करेगा वो बोलेगा जीरो है उसका वैल्यू। क्यों? क्योंकि नंबर में ऑलरेडी इवन पैरिटी है। देखिए ये आपका नंबर था, ये आपकी पैरिटी बिट यहां पे ऐड हो गई, तो ये आपका नंबर है। इस पैरिटी एडिंग सर्किट ने एक एक्स्ट्रा बिट अपेंड कर दिया आपके कोड के साथ, जो इंश्योर करेगा कि ये वाला नंबर जो ओवरऑल कोड बना जिसको हम रिसीवर की तरफ भेजेंगे उसमें इवन पैरिटी हमेशा। अब इससे एरर कैसे पता चलेगा? सपोज अब जब यहां पे लेटर ए मैंने भेजा था अवंतीपुरा से लालचौक की तरफ, फॉलोइंग विच सिस्टम, इवन पैरिटी सिस्टम। पीछे बैठने के नुकसान बहुत है। फॉलोइंग इवन पैरिटी सिस्टम। अब सपोज मुझे बताइए वहां पे जो कोड पहुंचा वो है तो मैंने भेजा था ये, पहुंचा ये, तो क्या ये सही है? कैसे पता आपको गलत है? एग्जैक्टली राइट। ऑल्दो कोई ये भी कह सकता सर ये जीरो सीधा वन में कन्वर्ट हो गया, नहीं, रिसीवर को मत पता ये सेंटर ने भेजा क्या है, तो ये आपके सामने है ही नहीं, ये कोड को भूल जाओ। समझ आ रही है बात? तो रिसीवर क्या करता है, वो चेक करता है, वो उसको पता है कि अवंतीपोरा में जो सिस्टम है वो इवन पैरिटी फॉलो करता है, वो कभी ऑड पैरिटी फॉलो नहीं करता है। अब जब वो कोड पकड़ेगा इसी तरह, वो पहला काम करेगा इसमें पैरिटी चेक करेगा कि पैरिटी जो है वंस की वो इवन है ऑड है। अगर उसको पता चला 1 2 3 वन है, वो बोलेगा नहीं जी ये गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा। वो वापस उसको सिग्नल भेजेगा, बोलेगा जी नए से भेजो, कुछ गड़बड़ हो गई है कहीं तार के तो सो इसलिए now when it sends it again second time, maybe it sends the correct code, so 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। so then it identifies, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। ठीक इधर पर सेम चीज, अगर इस पैरिटी एडिंग सर्किट बनाओ, इस बनाओ गलत ना, या इस बनाओ ऑड पैरिटी, अगर ऑड पैरिटी सिस्टम आ से, ठीक है। तो मेमोरी कंसेप्ट क्या है भाई? ए, लेटर ए विल बी गिवन एज, जरा बताइए ऑड पैरिटी सिस्टम अगर होगा, लेटर बी इज गिवन बाय दिस, द सिस्टम इज ऑड पैरिटी सिस्टम। इन ऑर्डर टू रिसीव दिस कोड करेक्टली, व्हाट शुड बी द पैरिटी बिट? यू कैन इजीली आंसर, राइट? यू गेट माय पॉइंट? सही। सो पैरिटी बिट डिपेंड, पैरिटी बिट तो 8 वाली बिट ही होगी, ये तो 0 होगी या 1 होगी, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला, आप इवन पैरिटी फॉलो कर रहे हैं या ऑड पैरिटी फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, इस
कोड में ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ वंस अगर है तो इवन पैरिटी फॉलो कर रहे हो तो ये बिट 0 रहेगा। अगर इसमें ऑड पैरिटी है और आप इवन पैरिटी फॉलो कर रहे हो तो ये बिट 1 हो जाएगी। समझ आ रही ना बात? जिसको बेटा नहीं आ रही है बात समझ, I'm sorry, I cannot help it further. You'll have to revise previous lectures or today's lecture itself. तो this देखिए, और the matter of the fact is that मैंने ये चीज आज ही पढ़ाई है, लेकिन क्योंकि आपने कुछ लेक्चर्स पुराने मिस किए तो बच्चे को ऑलरेडी ना वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है, ये उससे ही रिलेटेड है। मैंने एक चीज आज ही पढ़ाई ना, नमस्कार बोर्ड पर लोगों का, ठीक है? तो हर एक जो बच्चा जिसने प्रीवियस क्लास मिस की उसको ये रहता है मैं करूँ मैं मुझे समझ नहीं आएगा। मैं उनको कोशिश ही कह रहा हूँ जिन्हें कुछ क्लास मिस की है प्रीवियस। So that's why I recommend never miss even a single class unless and until it's really urgent. And if you have this habit, अगर आपका नेचर ऐसा बनेगा तो obviously आप वो वाली क्लास रिवाइज भी करोगे। लेकिन अगर आपने पहले ही सोच लिया है 25% मुझे लीवे है so 20% तो मैं क्लासेस खा ही सकता हूँ, not the right approach. It will dent you definitely in terms of marks, concept, कहीं ना कहीं तो dent करेगा। So approach ये है कि मुझे 100% रहना है क्लास में। कभी हुआ 10-20%, अगर 12% है, it has to be a logical reason. It will never be a logical reason. Quick was road. गो मसला गो ये तो समझो ठीक है, ठीक है? Let me pause for a moment. So just to recap, since now we are starting the next heading, adder circuit. So adder circuit में पहला जो हम करेंगे वो है 1-bit half adder. Now in this 1-bit half adder, the first thing that we are designing is a block diagram representation of 1-bit half adder. Input A is a 1-bit input, input B is 1-bit. So all the inputs which are here are only 1-bit. So that's why I named this as 1-bit adder. वरना हम usually 1-bit adder नहीं लिखते. But for your understanding, for day 1, I wrote 1-bit half adder. Whenever I say half adder, it means by default 1-bit. ठीक है? So next point, I have seen the block diagram. ये by the way मैं आपको सिखा भी रहा हूँ डिजिटल डिजाइनिंग में या किसी भी डिजाइनिंग में आप ऐसे ही अप्रोच फॉलो करें. The first thing that you go for is a rough, random block diagram because a block diagram is easy to make. What do you see in a block diagram? You just see the number of inputs and you just see the number of outputs. So you get an idea कि मुझे कितने inputs और कितने outputs चाहिए. नंबर 2 आप देखते हैं उनका साइज क्या है. इनका साइज 1-bit है और इसका साइज भी 1-bit है. So step number 2 is the Boolean expression. No. Step number 2 will be truth table. Step number 2 will be truth table because truth table से ही हम अपना क्या निकालते हैं? Boolean expression. So step number 2 is truth table. So क्या है truth table? Eyes on board please. कितने inputs है भाई यहाँ पे? 2 inputs. A और B. कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इन 2 इनपुट्स के? 4. कौन कौन सा? 1 2 3 4 1 2 1 2. समझ आई कुछ बात? जब 2 इनपुट्स होते हैं तो 2 0 2 1 फिर लास्ट में देखो अगर 3 इनपुट्स होते तो 4 0 4 फिर 2 0 2 2 0 2 लाइक दैट. एनीवेज 4 कॉम्बिनेशन आ गए, डन. आउटपुट्स कितने हैं? 2. पहला है सम और दूसरा है कैरी. अच्छा ग्राफ पे लिखने वाला और दूसरा है आपका कैरी. ओके जी, इज इट फ्रेम? सो क्या करता है इस एडर? ये 2 बिट्स को ऐड करता है. पर उसमें ना अरिथमेटिक एडिशन बचा यार, इसको ना बाइनरी एडिशन. सो इसलिए आज सुबह आपका हूं बाइनरी एडिशन. सो हमें 0 और 1 को ऐड करना है. मुनीब, 0 और 1 को क्यों ऐड करना है? That's what's called an dash. खत्म हो जाता है करने में. बोला इतने से 0 और 0 को ये दोनों इनपुट्स हैं. पहला पॉइंट, सम निकालने के लिए मुझे इन 2 बिट्स को तो ऐड ही करना पड़ेगा, माइनस थोड़ी करना पड़ेगा. सो 0 + 0 is
मतलब एब्सेंट माइंड जैसे कि हद है। आपने तो यूनिवर्स के लॉ ही बदल दिए। 0 plus 0 is 1. 0 plus 0 is 0. So now, will there be any carry? Eyes on board, please. Will there be any carry? Eyes on board. Sum of 0 and 0 is 0. Will there be any carry? No carry. So carry is also 0. Now 0 plus 1. Sum will be equal to 1. Will there be any carry? No, because 0 plus 1 go up 1, not 2 or 3 or 4. Now 1 plus 0, sum is again 1. But will there be any carry? No carry. Now 1 plus 1, अगर इस 1 ऐड करा with 1, 1 plus 1 must go 2. Sum is 0 बराबर carry 1. क्या सही? So 1 plus 1 is basically 2. So sum we write 0, but carry will be 1. Is that okay? Do you follow? बनाए? इशू वाइज मजेदार टॉपिक में 8% नोट सहा मतलब इस बात को भेजना तो जो इंप्लीमेंट करो इशू वाइज साल लेकर एवरी वन ऑफ यू जिसको पिछली क्लासेस अभी उसने समझी भी नहीं है पूरी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 90% समझ आएगा, बस 1% डाउट आएगा, वो 10% पिछला जवाब करने से क्लियर हो जाए। लेकिन ये वाला टॉपिक यहाँ से बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये बेसिक सर्किट्स है। मोकलेवस दिमाग वंश बनावे बूलियन एक्सप्रेशन, अगर तुझसे थोड़ा तुला दिन चला कि बूलियन एक्सप्रेशन बनाओ, यस और नो, यस और नो, क्या पता है सागर तुला दिन चला कि बूलियन एक्सप्रेशन बनाओ, कार से इतनी काम करते हैं, क्या है नो, क्या है स्टॉप, अगर मुझसे तुला चला क्या बनाओ, यस और नो, What? No. अगर मैं सुनता हूँ चलते क्या बनाऊँ? सम और कैरी। जी? देखिए, अगर आप ध्यान दें, मेथड क्या है? मेथड क्या है असली? मेथड ये है जहाँ जहाँ भी वन है वो वाली टर्म हम लिखते हैं। अगर हम इन टर्म फॉर्म में प्रेजेंटेशन। So next heading is second part, third one. Boolean expression. Boolean expression is basically the relation of your outputs with respect to inputs. तो Boolean expression मुझे दो निकालने हैं, एक तो sum के लिए और carry के लिए। देखो जी बेटा, अब sum जहां जहां वन है वो वाली टर्म आएगी, है ना, सिंपल। और वो टर्म क्या है? a बार b प्लस a b बार। इशू आप तरीके, व्याप तरीके सिंपली बाय विजुअलाइजेशन। आपको नहीं लगता ये ट्रुथ टेबल जो है वो XOR गेट का ट्रुथ टेबल है, जहां ऑड नंबर ऑफ वंस है वहां आउटपुट 1 है, और जहां इवन नंबर है वहां 0 है ना। सो सिंपली मुझे कुछ नहीं लिखना है, मुझे लिखना है a XOR b, और which actually is nothing but this is a bar b plus a b bar. So both ways, if you write the answer both ways, it is correct. Whether you write this in exam or wherever, or you write this, both are correct. No problem. Because one is you follow the conventional method, and another you just by see by visualization की XOR गेट by मुझे क्या ज़्यादा इसमें माथा पर्ची करनी है, सीधे XOR गेट खत्म करना। वन जो क्या है? क्या है जो simple? क्या है जो x is 1? And by the way, this relates to the truth table of n. Anyone should answer. This relates to the truth table of which gate? Which gate? And gate 1 1 only, then output is 1, all other cases output is 0. So it is nothing but AND gate. So now other ways around, अगर मुझे ट्रुथ टेबल से बुल एक्सप्रेशन बनाना है, क्या मेथड है? जहां जहां भी 1 है वो वाली टर्म आउटपुट पे लिख दो।
यहाँ एक ही जगह बात है तो खाली ये वाली टर्म आउटपुट में आएगी। सो कैरी इज नथिंग बट a dot b, that's it, there is no other way to write it because we have only one term. हो गया इतना बेटा? समझ आया? किसको समझ नहीं आया रेज योर हैंड प्लीज। किसको समझ नहीं आया रेज योर हैंड। ठीक है जी। देखो बेटा ये ट्रुथ टेबल है हमारा। आपने मिन टर्म फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का लेक्चर दिया है? मिन टर्म फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कि अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल होगा उससे हम बुलियन एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं यूजिंग मिन टर्म। वो क्या बताता है मुनीब? वो बताता है कि जहां भी आपके, बिकॉज ये अल्टीमेटली एक फंक्शन f है, आई कैन रिप्लेस दिस सम बाय f एंड आई कैन रिप्लेस दिस कैरी बाय y, इट्स ऑल द सेम, इट डजंट मैटर, बट जस्ट मैंने उसको एक नाम दिया। ये फंक्शन जो y है, अगर मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना है f इज इक्वल टू जहां जहां भी 1 है वो वाली टर्म में लिखता जाऊंगा। एक यहाँ पे 1 है और उस टाइम जो इनपुट्स का नेचर है वो है a बार b। a बार इसलिए बिकॉज यहाँ 0 है और b इसलिए बिकॉज ये 1 है, तो मैं पहली टर्म लिखूंगा a बार b। अब जो जहां दूसरी जगह 1 है वो इसके प्लस में आएगी। दूसरी जगह 1 यहाँ है तो वो है a b बार प्लस a b बार। और जहां तीसरी जगह 1 होता वो इसके प्लस में आती, लेकिन तीसरी जगह कहीं 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी मिन टर्म फॉर्म रिप्रेजेंटेशन इन्हीं दो टर्म्स होती है। और अगर ये इस पे ध्यान दें, ये a x और b का एक्सपेंडेड वर्जन है और कुछ नहीं। दैट्स इट। समझ तो रहा? डन। नेक्स्ट अब ये काम आप पे है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हेडिंग नहीं सॉरी, इसी के साथ फोर्थ वन, realization of sum and carry, realization of sum and carry using logic gates, realization of sum and carry using logic gates। इसमें लिखिए और implementation, और इसमें लिखिए स्लैश करके, और implementation of sum and carry function using logic gates, implementation of sum and carry function using logic gates। realization of sum and carry using logic gates। और मतलब एग्जाम में दोनों में से कोई भी हेडिंग आ सकती है, क्योंकि अगर आपका पेपर एक्सटर्नल भी आया है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। रियलाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन और डिजाइन तीनों सेम चीज है। Realization, implementation or design of sum and carry function using logic gates. This you have to do on your own. That is the exercise. Just show me how you do it. Okay, this was the chance for you to design it, but I hope you have designed by now. In case you have not, I will go. इसको डिजाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, मुझे देखना है इनपुट्स कितने हैं। इनपुट्स 2 है, ये हो गया मेरा इनपुट A, ये हो गया मेरा इनपुट B। बेटा ऐसे बनाओ तो बेहतर है। अब क्या कोई कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है वहां पे? नहीं। इसको 2 मिनट के लिए अगर आप भूल जाओ, बिकॉज एक्सपेंडेड फॉर्म, तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मुझे किसी को कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड कितने गेट्स लग रहे हैं? 2 ही गेट्स लग रहे हैं। एक हो गया मेरा XOR गेट, दूसरा हो गया मेरा AND गेट। पहला XOR गेट जनरेट कर रहा है मेरा सम फंक्शन और AND गेट जनरेट कर रहा है कैरी। सम जनरेट करने के लिए मुझे A और B को XOR करना है। A में यहां से ले रहा हूं और B सीधा यहां से ले रहा हूं। AND जनरेट करने के लिए मुझे A और B, सॉरी कैरी जनरेट करने के लिए मुझे A और B का AND करना है। A में यहां से भी ले सकता हूं और B यहां से ले लिया, मेरी मर्जी, क्योंकि यहाँ पे तो A ही है ना, ये भी A है, ये भी A है, या मैं यहां से भी ला सकता हूं, नो प्रॉब्लम। आपको बस A देना है। या तीसरा केस में यहाँ पे न लिख के सीधे यहाँ पे भी A और B लिख सकता हूं, कोई मसला नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए। ऑल्दो बेहतर डिजाइन वही है जो मैंने लिखा है। हो गया मसला हल। देखिए वहां बच्चों, ब्लॉक डायग्राम से ट्रुथ टेबल की गो देखिए सर, देख लो ब्लॉक डायग्राम
rotatable circuit realization. क्वेश्चन लिखिए, implement half adder using NAND gates only. Implement half adder using NAND gates only. मैं दिखाऊं कि आप खुद करेंगे, आपसे हो जाएगा ये? Implement half adder using NAND gates only. चलिए मैं दिखा देता हूँ. Implement half adder using NAND gates only. अगर आपको याद होगा, if you remember, मैंने आपको लास्ट टाइम यूनिवर्सल गेट्स जब पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने आपको NAND गेट का स्ट्रक्चर बनाया था, सॉरी XOR गेट का स्ट्रक्चर बनवाया था यूजिंग NAND गेट्स. इसी तरह XOR गेट का स्ट्रक्चर बनवाया था यूजिंग NOR गेट्स भी. वही कीजिए, ये XOR गेट है तो XOR गेट का स्ट्रक्चर बनाइए. उसमें कितने NAND गेट्स लगते हैं? So this is AB. यहाँ पे देगा ये A dot B bar and then it continues. Ultimately यहाँ पे आपको क्या मिलता है? A XOR B, which is nothing but sum. Okay. So the heading for this is implementation of half adder using NAND only या NAND gates only. Is that okay? अब रहा कैरी का सवाल. कैरी का कुछ बराबर A डॉट. अगर भी ध्यान, आइज ऑन बोर्ड प्लीज. अगर भी ध्यान दिए कि ये मुझे जनरेट का सेट करो मार्क, which is A डॉट B बार. अगर भी यह एक NAND गेट में उतराओ या दुश्मन इनपुट कनेक्टेड शी है, ये क्या काम कर रहा है? इन्वर्टर A डॉट B बार को ये इन्वर्टर में डाला तो आउटपुट क्या निकलेगा? A डॉट B, which is nothing but carry. अच्छा सिंपल. अच्छा जी, ये अच्छा स्ट्रक्चर. ओके. इसके बाद फॉरन नेक्स्ट हेडिंग, हाफ एडर यूजिंग NOR गेट्स ओनली.
ये आप जी खुद से करेंगे। मुझे लगता है आपको अब समझ आ गया। एक बार ट्राई करेंगे, लेकिन ये यकीनन आप गलत ही करेंगे, मुझे भी पता है। फिर इसको करेक्ट कीजिएगा एक बार ऑनलाइन देखिए, आई थिंक इट शुड बी इजी नाउ। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इसके बाद, हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स लिखा ना आपने, ये आप खुद कवर करेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। नॉर गेट, हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स, हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हाफ subtractor. This half subtractor is again a 1-bit half subtractor. First thing first, ये अब नेक्स्ट सेटिंग है बेटा, सर्किट नंबर 2, दैट वाज सर्किट नंबर 1, दिस इज सर्किट नंबर 2। इसके जरिए circuit number 2 is your half subtractor. First thing is block diagram representation. The block diagram of a half subtractor will look almost the same as that of the half header. We will have two inputs, आप बनाते जाइए, A and B, and we will have two outputs, difference and ball. half subtractor में सम और कैरी नहीं होके